جی الحمدللہ ہم نے لاسٹ کلاس میں استحاضہ کے بارے میں بھی پڑھ لیا تھا، اور ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ استحاضہ جو ہے وہ ایک بیماری ہے، اور استحاضہ والی عورت ویسے پاک ہوتی ہے، اور وہ سارے کام کر سکتی ہے جو ایک پاک عورت کر سکتی ہے۔ صرف جو اس کے پیریڈس کے دن ہوتے ہیں اس میں وہ نماز روزہ وغیرہ سب کو چھوڑ دے گی، جیسے حیض کی طرح سے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور جو باقی کے دن ہیں اس میں چاہے اس کو بلیڈنگ بھی ہوتی رہے لیکن وہ پاک کنسیڈر کی جائے گی۔ استحاضہ والی عورت کے لیے ہر نماز کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک وضو کے ساتھ وہ ایک وقت میں جتنی نماز چاہے پڑھ سکتی ہے، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفل ہو، کچھ بھی وہ پڑھ سکتی ہے۔ لیکن الگ الگ اوقات میں جب اسے اب نمازیں ادا کرنی ہے تو وہ ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرے گی۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ باقی استحاضہ والی عورت تمام کام کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایک پاک عورت ہی کنسیڈر کی جائے گی۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے، جو کہ آج ہمارے اس کا آخری ٹاپک بھی ہے، وہ ہے تیمم۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس سے ہم نماز کے بارے میں اسٹارٹ کریں گے۔ تیمم جو ہے الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے ارادہ کرنا یا قصد کرنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں کہ چہرے پر اور ہاتھوں پر پاکیزہ مٹی کے ساتھ مخصوص طریقے سے مسح کرنا طہارت کی نیت سے، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے تیمم کا طریقہ سب لوگوں کو؟ جی میم، بس دونوں ہاتھ مٹی پہ رکھ کے آپ نے جھاڑ کے تو ہوں منہ پہ ایک دفعہ اچھی طرح لگا لینے، اتنا ہی ہوتا ہے میرا خیال طریقہ۔ جی ہاتھوں پہ بھی ٹھیک ہے، ایک دفعہ یعنی آپ نے، اب انشاءاللہ آگے طریقہ آئے گا بھی، اور اس میں بھی کچھ اختلافات ہیں، لیکن جو صحیح مسنون طریقہ میں پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ پاک مٹی پہ ہاتھ ماریں گے، اور ہاتھ مارنے کے بعد آپ کے ہاتھوں پہ جو مٹی آئے گی اس کو آپ تھوڑا سا پہلے پھونک مار کے اڑا دیں گے، اور اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو آپ اپنے فیس پہ یعنی چہرے پہ پورے اچھے طریقے سے مل لیں گے، اور اس کے بعد آپ لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ پہ، اور رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ کے صرف پشت کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی اور یہ ہاتھ بھی کہاں تک ہے؟ جہاں تک آپ کی کلائی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی یعنی رسٹ جہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے صرف وہاں تک، جو آپ کے ہاتھ ہیں جس میں آپ کی فنگرز اور رسٹ آپ کی ایسا ایسا شامل ہے، تو وہاں تک آپ اس کو پام وغیرہ تک وہاں تک آپ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے بس لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ پہ اور رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ تک، ٹھیک ہے، صرف کلائی تک، یہ آپ ان ہاتھوں کو پھیر لیں گے اور اس سے آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اور تیمم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ وضو کا نعم البدل ہے۔ تیمم کے ساتھ تمام وہ کام کیے جا سکتے ہیں جو وضو کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیمم کرتے وقت ہم سب کو بھی اس بات کی تسلی رکھنی چاہیے کہ جو ہے ہم جس طریقے سے اب اس وقت پاکی حاصل کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا بتایا ہوا ہی ایک طریقہ ہے۔ پھر دل میں کوئی خلش نہیں رہ جانی چاہیے کہ ہم وضو نہیں کر پا رہے یا جو بھی۔ البتہ تیمم کی کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے کہ کس وجہ سے تیمم کرنا آپ کے لیے جائز ہے، یعنی تیمم یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس وقت وضو کروں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو بہت سستی آتی ہے تو آپ تیمم کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ تیمم کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور اگر کبھی آپ کو فیل ہو اور تیمم سے آپ کو تسلی نہیں ہوتی ہو تو اس حدیث کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک یہ کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے اور پاک بنا دی گئی، یعنی اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے لیے اتنی آسانی ہے کہ ہمیں جہاں پہ بھی ہم ہوں وہاں پہ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، چاہے آپ کسی پارک کے اندر ہوں چاہے آپ کسی گراؤنڈ کے اندر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ پاک کر دیا ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں سے ہمیں جو ہے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو زمین ہے یہ پاک ہے، یعنی جو آپ تیمم کے لیے جو مٹی بھی لیں گے زمین سے تو وہ بھی پھر پاک ہوگی انشاءاللہ۔
अब वो कौन से असबाब है जिनकी वजह से तयम्मुम करना जायज़ है? इसके लिए बेसिकली आपके पास दो बेसिक कंडीशंस हैं। एक तो ये है कि आपके पास पानी नहीं है, ठीक है। यानी कभी एक ऐसा आपको, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है कि हम लोगों के पास तो पानी मौजूद होता है, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं गांव वगैरह के जहाँ पे, या अब शहर में भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा लिमिटेड आता है। ठीक है, बहुत ही कम, कभी कभी पानी आ रहा है, थोड़ा सा पानी आ रहा है, टैंकी में जमा करके रख लिया, उसी पानी को आपने एक हफ्ते तक चलाना है, और उसके बाद एक हफ्ते के बाद वो पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब घर में कोई पानी नहीं है, या जो भी इस तरह से कंडीशन ऐसी हो सकता है, आप सफ़र में हो और सफ़र में पानी नहीं हो, ठीक है, यानी हज़र हो या मुसाफिर हो, दोनों कंडीशंस में तयम्मुम की इजाज़त है, लेकिन इन कंडीशंस के साथ। चाहे तो आप सफ़र कर रहे हो, या अगर आप अपने घर में भी मौजूद हैं लेकिन आपके पास पानी नहीं है, तो आपको तयम्मुम करने की इजाज़त है। ठीक है, या तो पानी नहीं है, और दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि पानी तो मौजूद है लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ये कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको ये बात पता है, आपको ये बात डॉक्टर ने बताई है कि अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो उस पानी के इस्तेमाल से आपकी बीमारी को बढ़ जाने का अंदेशा है, या तो बीमारी बढ़ जाएगी या फिर मौत वाक़ई हो सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में अल्लाह ताला ने तयम्मुम की इजाज़त दी है। ठीक है, लेकिन बिला वजह, मतलब सिर्फ वही वाली बात जैसे हमने कही कि इंसान का दिल नहीं चाह रहा वजू करने का तो वो सोचे चलो मैं तयम्मुम कर लूँ, तो इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि पानी की मौजूदगी से तयम्मुम ख़त्म हो जाता है। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि अगर पानी अगर आपको तयम्मुम करने के बाद मिल भी जाए तो आपको तयम्मुम की मुद्दत फिर वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अब ये है कि नमाज का वक्त शुरू हो चुका है और इंसान को पानी नहीं मिल रहा और नमाज का वक्त गुजर भी रहा है, तो वो क्या करे? अब ये है कि अगर तो वो सफ़र में है और उसको पानी नहीं मिल रहा, इसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल हैं। इसमें एक तो ये है कि मतलब ये कि देखिए, एक तो आप देख लें कंडीशन ऐसी है कि वो सफ़र में है और उसको पानी नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा कि पाकीज़ा मिट्टी से तयम्मुम करेगा और नमाज पढ़ लेगा। और इस पे तमाम फुकहा का इजमा भी है कि सफ़र में है, अगर इंसान, उसको पानी नहीं मिल रहा, नमाज का वक्त शुरू हो चुका है, नमाज का वक्त गुजरता जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है? उसके पास तयम्मुम का ऑप्शन मौजूद है कि वो पाक मिट्टी से तयम्मुम करेगा और नमाज नहीं पढ़ेगा। सफ़र में तो सबके दरमियान में इजमा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मसला आता है वो आता है मुकीम के लिए, कि लोग जो आपस में उल्मा में जो अख्तिलाफ है उनके अकवाल में, वो है मुकीम के लिए, कि अगर मुकीम एक ऐसा बंदा है जो कि अपने घर में मौजूद है लेकिन उसको पानी नहीं मिल रहा, तो वो क्या करे? इसमें उल्मा के दरमियान इख्तिलाफ मौजूद है। राजे कौल के मुताबिक मुकीम भी तयम्मुम करेगा और नमाज पढ़ेगा और उस पर किसी किस्म का कोई इआदा नहीं है। यानी जो तयम्मुम के अहकामात हैं वो मुकीम के लिए और मुसाफिर दोनों के लिए हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आसानी दी गई है, और ये पानी की एब्सेंस की वजह से हो रहा है या फिर पानी मौजूद है लेकिन इंसान उस पानी को इस्तेमाल करने से कासिर है अपनी किसी भी मजबूरी की वजह से, तो ऐसा इंसान चाहे अपने घर में हो चाहे वो सफ़र कर रहा हो, इन बोथ द केसेस वो तयम्मुम कर सकता है, और तयम्मुम करने के बाद वो नमाज अदा कर सकता है और उस पर किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है। दूसरा जो कॉल हमें इस बारे में मिलता है वो ये है कि वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले और जब पानी मिल जाए तो दोबारा वजू करे और वही नमाज दोबारा से अदा करे। और ये इमाम शाफी और इमाम अहमद हम्बल का कॉल है, यानी वो इस चीज़ के कायल थे। और जो तीसरा कॉल है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इंसान नमाज पढ़ेगा ही नहीं यहाँ तक कि उसे पानी मिल जाए या फिर वो सफ़र में चले जाए। और ये इमाम अबू हनीफा का एक कॉल है, इमाम मालिक का एक कॉल है, इमाम अहमद का एक कॉल है। ठीक है, यानी जो इमाम अहमद का एक कॉल हमें मिलता है, ठीक है, यानी इसके अलावा भी उनके अकवाल हैं जो कि ऊपर दोनों अकवाल उसमें भी मौजूद हैं, लेकिन एक राय उनकी हमें ये भी मिलती है कि वो ये भी कहते हैं कि वो इंसान या तो नमाज ही नहीं पढ़े या फिर सफ़र में चला जाए, क्योंकि उनको, इनके नज़दीक सफ़र यानी एक मुसाफिर के लिए तो तयम्मुम की इजाज़त है लेकिन एक मुकीम के लिए नहीं है। अब इसमें जो है तीनों अकवाल वालों ने अपने अपने दलाइल भी दिए हैं। जो पहले कौल वाले के दलाइल हैं वो क्या है? वो कहते हैं कि अगर वो कुरान की आयत उठाते हैं
सूरत अल माइदा की, जिसमें अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि तो अगर तुम नापाक हो तो नहा लो, और अगर तुम बीमार हो या सफर पे हो, या तुम में से कोई रफा हाजत से आया हो, या तुम औरतों के पास गए हो, फिर तुमको पानी ना मिले तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। यानी अल्लाह ताला ने क्या यहाँ पे फरमा दिया कि अगर तुम्हें पानी नहीं मिले तो फिर पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। और इसके अलावा वो एक और, यानी इससे ये पता चला कि अगर इनमें से कोई भी आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप या तो सफ़र में हैं या आप मरीज हैं, ठीक है, और आप बिस्तर से, अगर आपके पास पानी नहीं है, आप इसमें से कोई भी कंडीशन है कि आप ने रफ़ा हाजत की हो या आपने औरतों के साथ कुछ ताल्लुक कायम किया हो, उसके बाद आपको पानी नहीं मिल रहा, तो आप किस तरह से पाकी हासिल कर सकते हैं? आप पाक मट्टी के जरिए से भी पाकी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक हदीस भी मिलती है इसमें, जो इस बात पर दलील देती है कि एक जो मुकीम इंसान है, हज़र में भी वो तयम्मुम कर सकता है। इसमें एक हदीस है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत के लिए गए थे, और वहां से जब निकले तो एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेलियों को ज़मीन पर मारा और अपने चेहरे का एक मरतबा मसा किया, और फिर दूसरी मरतबा हथेलियों को मारा और अपने बाजुओं का कोहनियों तक मसा किया। और फिर आपने फरमाया कि मुझे किसी ने नहीं रोका था तेरे सलाम का जवाब देने से, मगर ये कि मेरा वजू नहीं था, और मैंने ये सोचा कि मैं पाक हालत में तेरे सलाम का जवाब दूं। इससे लेकिन इस सलाम का जवाब देने के लिए, सलाम करने के लिए तहारत शर्त नहीं है, ठीक है, यानी अगर आपको वजू नहीं है तब भी आप सलाम का जवाब या सलाम कर सकते हैं। लेकिन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना एक ज़ाती अमल था, तो उन्होंने इस चीज़ को प्रेफर किया कि वो वजू करके सलाम का जवाब दें। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि हालांकि वो मुकीम थे, अपने घर में मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे तयम्मुम किया। अच्छा, यहाँ पे जो तयम्मुम करने का तरीका भी जो हमें पता चल रहा है, इसके बारे में भी यही आता है कि ये भी एक उनका अपना अमल था, लेकिन जो हमें हुक्म मिलता है वो वही मिलता है। यानी जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तयम्मुम का तरीका सिखाया है, तो तयम्मुम का तरीके में उन्होंने कोहनियों तक जो है वो नहीं मसा किया था, बल्कि सिर्फ हथेलियों तक किया था। ठीक है, ये उनका एक अपना अमल था जो उन्होंने कभी किया था। और इसी तरह से जो बाकी जो दूसरे अकवाल वाले हैं, उन्होंने भी अपने अपने कुछ ना कुछ दलाइल दिए हैं। बेसिकली जो तीसरे कॉल वाले लोग हैं, उन्होंने भी इसी ही आयत को दलील बनाया है, और इसी आयत में के बारे में उन्होंने ये कहा कि इसमें अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अगर तुम सफर में हो तो फिर जो है वो तयम्मुम कर लो। तो उन्होंने इसको इसी आयत को दलील बनाते हुए कहा कि अगर सफर में है, यानी मुसाफिर है, वो तो तयम्मुम कर सकता है, लेकिन जो मुकीम है वो तयम्मुम नहीं कर सकता। लेकिन फिर उलमा ने इसका क्या जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे सफ़र का जिक्र खास तौर पे इसलिए किया है क्योंकि आम तौर पे होता ही है कि इंसान को सफ़र में पानी नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन आप घरों में जो इंसान मौजूद होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास पानी होता है। जैसे कि अगर आप देखें तो जो रहन की आदत है, आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने कोई चीज़ गिरवी रखने के बारे में कुरान में फरमाया, तो उसमें भी अल्लाह ताला ने सफ़र के बारे में ही जिक्र फरमाया कि अगर तुम सफ़र में हो और तुम कोई चीज़ रहन रख दो, तो इस तरह से आगे जो भी पूरी आयत है, तो उसमें भी इससे जैसे कि आप जो रहन रखने वाली बात है, कोई चीज़ गिरवी रखने की बात है, तो सिर्फ मुसाफिर नहीं गिरवी रखता, बल्कि एक मुकीम इंसान भी अपनी चीज़ों को गिरवी रख सकता है। लेकिन सफ़र में ये चीज़ ज़्यादा पेश आ सकती है इंसान को, क्योंकि वो सफ़र में होता है, कोई अपना जानने वाला नहीं होता, अकेले सफ़र कर रहा होता है, कोई भी बात हो सकती है, तो उस वक्त वो चीज़ ज़्यादा पेश आती है, इसलिए अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे यहाँ पे सफ़र का जिक्र किया है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हज़र के लिए भी वैलिड है। तो इसी तरीके से ही बिल्कुल तयम्मुम जो है वो भी मुकीम के लिए भी वैलिड है, बशर्ते कि उसके पास पानी नहीं हो, या फिर पानी तो हो लेकिन पानी के इस्तेमाल से उसकी बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा हो, तो वो तयम्मुम कर सकता है। ठीक है, और इसके बारे में तमाम उलमा का इजमा है। कुछ के अख्तलाफात मौजूद हैं कि मरीज आदमी कर सकता है नहीं कर सकता, लेकिन जो राजे कौल है वो यही है कि बीमारी के सबब भी इंसान तयम्मुम कर सकता है। अब बीमारी की हद क्या है? ठीक है, यानी ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें इंसान तयम्मुम कर सकता है?
تو اس میں بھی مختلف اقوال موجود ہیں، اور راجح قول کے مطابق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے، اسی لیے کوئی بھی ایسی بیماری جس میں آپ کو پانی کے استعمال سے اپنی جان جانے کا خطرہ ہو، یا پھر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، کوئی ایسا زخم ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پانی لگ جائے گا تو وہ آپ کے میں زخم بہت زیادہ بڑھ جائے گا، یا کوئی بھی ایسی بیماری آپ کو موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر تیمم کی اجازت دی ہے۔ لیکن جو البتہ عام انسان کو ڈیلی روٹین میں کچھ بیماریاں ہو جاتی ہیں، کہ جیسے کبھی انسان کے سر میں درد ہو جاتا ہے، کبھی کسی انسان کو جو ہے وہ نزلہ ہو جاتا ہے، یا کبھی انسان کو کوئی کھانسی ہو جاتی ہے، ہلکی پھلکی سی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان میں تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس پانی موجود ہے تو پھر آپ پانی سے ہی پورا وضو کریں گے۔ جی بشرا، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میم، میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے آج کل جو بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں وہ بزرگوں کے لیے آ رہے ہیں، جو بہت بیڈ باؤنڈیڈ بزرگ ہوتے ہیں نا، بالکل، جی جی ان کو، ہاں جی، ان کو ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ بچے الرٹ ہوتے ہیں، بچوں نے سورسز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، خود وضو کروا رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے پرماننٹلی ہی پاس میں روٹین کے کام اپنے بزرگوں کے خود کرتے ہیں، لیکن پرماننٹلی وضو کرانے کے لیے ہیلپر بھی پاس بٹھایا ہوا ہوتا ہے جو وضو کروا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن کچھ لوگ یہ ایسے بھی ہیں کیسز جس کے اندر بزرگوں کو بچے بار بار کروا رہے ہوتے ہیں، پھر بھی بہت دفعہ کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہوتا، یا فالج کے جو ہیمیپلیجیا کے پیشنٹس ہیں نا، میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ جی جی تو اس کے لیے دو طریقے معلوم کیے تھے۔ میری اپنی خالہ کا ایک کیس اس طرح ہوا تھا کہ ان کی ایک بہو ہی تھی، ان کے بھی چار بچے تھے، تو وہ ہر وقت کروا نہیں سکتی تھی نا ان کو، جی وہ کرواتی بالکل، بھی تھی، بہت جی جی، الرٹ تھی، ہاں جی۔ تو ہوں، اس کا دو طریقے بتائے گئے تھے، ایک تو یہ کہ وہ گلاس میں پانی پاس رکھ دیتی تھیں، جی تو خالہ نا ہاتھ سے بس گیلا کر کر کے، تو جیسے ایک وضو کا کر لیتے ہیں سارا، بالکل، ہاتھ گیلا کر کر کے سب جگہ۔ دوسرا طریقہ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ کچی مٹی کی سلیب رکھ دی تھی ان کے پاس۔ بالکل، اس پہ مجھے ذرا ڈاؤٹ ہے، یہ آپ کلیئر کریں کہ کچی مٹی کی سلیب رکھ دی تھی خالہ، اس سلیب پہ ہاتھ رگڑ کے تو تیمم کرتی تھی، تو اب کیا کرتے وہ لوگ؟ یہی طریقہ ٹھیک تھا، یا کسی برتن میں ان کے پاس مٹی رکھ دیتے، یا کیا اس ٹائم بندہ طریقہ اختیار کرے؟ جیسے سردیاں ہیں، وہ بار بار پانی کا گلاس بھی نہیں اویلیبل، تو اس جی ٹائم کیا کرنا چاہیے اس طرح کے پیشنٹ کے لیے؟ جی بالکل، اس میں یہی ہے کہ جو جیسے کہ انہیں مٹی کے سلیب رکھ دی جیسا بتا رہی ہیں، اور کچی مٹی ہے، اور اگر اس پہ آپ ہاتھ لگا رہے ہیں اور اگر آپ کے ہاتھ پہ مٹی آ رہی ہے، تو پھر اس سے اجازت دیتے ہیں علماء کہ آپ اس مٹی کو تیمم کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ سکتا ہے، لیکن میم وہ نہیں آتی تھی، جیسے یہ گھڑے وغیرہ نہیں، یعنی کہ وہ پکی ہوئی مٹی کی سلیب تھی، وہ مٹی تو نہیں، وہ خالہ نے وضو کر کر کے ہاتھ لگا لگا کے اس کے اوپر سے کوئی مٹی بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہ مولوی صاحب ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح میرے خالہ کو تہجد کا بھی شوق ہوتا تھا، عشاء کا وضو تو کروا دیتے تھے نا بچے، لیکن جی نوافل پڑھنے کے لیے یا ویسے آپ کو پتا ہے بار بار بھی دل کرتا ہے نا بزرگوں کا پڑھنے کے لیے، بالکل، تو وہ خالہ، ہاں جی، تو وہ اس کے اوپر نہیں تھی مٹی، تو میں کہہ رہی تھی کہ اس کی جگہ کیا مطلب کیا جا سکتا تھا اس میں؟ مجھے ذرا صحیح سے گائیڈ کریں کہ اگر آئندہ کوئی ایسا پیشنٹ ہو جو پانچ نمازوں کے علاوہ بھی نوافل پڑھنا چاہتا ہو، تہجد پڑھنا چاہتا ہو، جو ہر وقت وہ بچوں کو بھی نہیں اٹھانا چاہتا، تو جی وہ کیا کرے؟ صحیح، بالکل، اس میں جہاں تک میرا علم ہے نا، تو میرے علم کے مطابق بھی یہی ہے کہ آپ ایسی جگہوں سے مٹی یوز کر سکتے ہیں، ایون علماء اس کی بھی اجازت دیتے ہیں، جیسے کہ مٹی کے پیالے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی اگر آپ کی مٹی آ جاتی ہے، جیسے کہ اگر آپ اس مٹی کو، جیسے کہ آپ کے گھر پہ جو ڈسٹنگ اگر ہم نہیں کریں، ہمارے اپنے گھروں پہ بھی اگر آپ 4 5 6 دن چھوڑ دیں گھروں کو، تو اس میں آپ کے گھروں پہ ڈسٹ آ جاتی ہے، تو علماء اس ڈسٹ سے بھی آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس ڈسٹ کو بھی تیمم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اچھا اس اچھا، جی گائیڈ لائن ہے میم، کیونکہ اگر جس طرح اب ہم نے بھی تو بوڑھے ہو جانا ہے نا میم، جی بالکل، تو بندہ بعض اوقات اپنے بچے جتنے بھی تابے دار ہوں میم، ہر وقت نہیں رات کو اٹھانے کو دل کرتا نا بچوں کو، نہیں نہیں، بالکل صحیح کہہ رہی یا ہیں جی، بچے، ہاں جی، تو میں کہہ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ جیسے بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو آپ نے یہ والی بات، ویسے میں نے پہلے مطلب آپ کے اب یہ گائیڈ لائن سنی ہے کہ جیسے مٹی ٹیبلز پہ یا کہیں آ جاتی ہے اسے تیمم کر لیں، کیونکہ نا مجھے یہ کچی مٹی والی سلیب کے اوپر تھوڑا شک تھا کہ شاید یہ طریقہ ٹھیک نہیں، اس کی جگہ کسی برتن میں مٹی ڈال کے رکھ دی جائے،
वो ज्यादा बेहतर तरीका है, या फिर गिलास में पानी का जो हल्का हल्का हाथ गीला करके वो कर लेती थी, वो तरीका ठीक है? जी, अब तक जो है ना वो हमें ये मिला है देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तो वही था कि आप पाक मट्टी पे जैसे बाहर कहीं ना कहीं हाथ मार के वो कर रहे होते थे, ठीक है। लेकिन ये है कि जैसे कि आपने जो कंडीशन बताई, जाहिर है कि बुजुर्ग हैं और वो नहीं उठ सकते हैं, पाक मट्टी उनके लिए कहाँ से लाएं, तो उसमें हमारे अभी तक जो इल्म के मुताबिक तो उलमा ने इस बात की इजाजत दी है कि जो है वो इस तरह से कोई मट्टी का प्याला भी अगर आपके पास मौजूद है और उसके साइड पे भी मट्टी लगी हुई है, तो आप उस मट्टी को भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज, आप ये सपोज कर लें कि आप कहीं किसी गाड़ी में भी सफर कर रहे हैं और गाड़ी में आप कुछ ऐसी जगह पे सफर कर रहे हैं कि आप गाड़ी को नहीं रोक सकते, या कुछ इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। अब जाहिर है मुझे तो, अब जैसे ये बारिश भी हुई तो उस वक्त भी मुझे बहुत ज्यादा, मैं जो देख रही थी, आपने भी देखा होगा कि लोग 8 8 9 9 घंटे जो है वो उसी बारिश के पानी में फंसे रहे। और मतलब उस वक्त मैं ये सोच रही थी, अब उल्मा इसके लिए भी कोई ना कोई हल निकालेंगे कि ऐसी कंडीशन में इंसान क्या करे, कि यानी वो अपनी गाड़ी को छोड़ के भी नहीं जा सकते थे उस वक्त वहां पे, और उनके लिए वुजू का भी कुछ ऐसा तरीका नहीं था, तो वो या नमाज को किस तरीके से अदा करें। जैसे कि फ़र्ज नमाज के बारे में आता है कि वो फ़र्ज नमाज के लिए क़याम ज़रूरी है और आप गाड़ी में उसको अदा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी मजबूरी की हालत में फिर उल्मा इसके लिए ज़ाहिर है कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे कि आप इस कंडीशन में फिर वहाँ पे भी अदा कर सकते हैं। तो इसी ही तरह से उल्मा ने फिर तयम्मुम के लिए भी इस बात की कंडीशन, इस कंडीशन में उल्मा ने इस बात की इजाज़त दी है कि आप कोई भी एक ऐसा बर्तन जिसपे कि मिट्टी जमा हो जाती हो, ठीक है, या कोई ऐसी दीवार हो, ठीक है, जैसे दीवारों पे भी मिट्टी आ जाती है, तो आप उसको तयम्मुम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक अब तक जो मुझे पता है वो यही है। मेरा यही क्वेश्चन था कि तयम्मुम वजू का रिप्लेसमेंट है ना, पानी नहीं बिल्कुल। है तो। जी जी। अ, अभी जो आपने बताया, अगर औरतों के पास गए हैं तब भी कर सकते, तो जब तो गुस्ल वाजिब हो जाता है ना, किस वक्त की बात कर रही हैं? जनाबत के बाद जी जो। जी जी। जी जी। हाँ, जी तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, जैसे आपने पढ़ा इधर की औरतों के पास गए, जाके आए हैं तो या हाजत ये किए हैं, टॉयलेट में गए हैं, जी। तो तो वो टाइम पे वो टाइम पे तो नहीं टॉयलेट के जाने के बाद, लेकिन जनाबत औरतों के पास गए मतलब जनाबत है ना, जी जी। तो उस हालत में तुम मतलब गुस्ल वाजिब है उस, जब भी अगर पानी नहीं है तो जी तयम्मुम से नमाज पढ़ सकते हो। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। और तयम्मुम जो है वो वुजू और गुस्ल दोनों का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। अगर आपको गुस्ल की भी लाहक हो गया, गुस्ल की ज़रूरत भी लाहक हो गई किसी भी वजह से, ठीक है, मुबाशरत की वजह से या किसी की भी, जो हमने रीजंस पढ़े थे जिनकी वजह से आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, उसमें भी अगर आपको ये सारी कंडीशंस हैं कि आपको पानी नहीं मिल रहा है या पानी के इस्तेमाल से आपकी बीमारी बढ़ने का अंदेशा है, तो आप उसमें भी जो है वो तयम्मुम कर सकते हैं। जी, आप कुछ और कहना चाह रही हैं? नहीं नहीं, यही पूछना चाहती हूँ मैं कि अच्छा। गुस्ल के बदले भी जी जी तयम्मुम करके अगर नमाज पढ़ सकते हैं, बिल्कुल। तो ये जबकि पानी नहीं है, राइट, जी तभी। बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल, और ये सारी जरूरी है, और वही वाली बात कि पानी नहीं है या तो बिल्कुल भी, और पानी है तो उससे, पानी से आपकी बीमारी बढ़ने का एक बहुत सीवियर वो है, ठीक है, यानी ये नहीं ये बहुत आम सी बीमारी है जिसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा पानी के इस्तेमाल से, तो आप पानी इस्तेमाल ना करें, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये कंडीशंस है। जैसे कि इसमें हमें एक सॉरी सहाबी का मैडम। किस्सा भी मिलता है कि जब वो गए थे और उनको जनाबत लाहक हो गई थी, तो वो पूरे जमीन में जो वो लोट पोट हो गए थे, अभी आगे आएगी भी वो इंशाल्लाह हदीस। तो जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने उस बात का जिक्र किया उनसे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि तुम इतना ही कर लेते तो तुम्हें काफी होता, और फिर आपने उनको तयम्मुम करने का तरीका सिखाया था, यानी वो पूरे जमीन पे जो ना वो लोट पोट हो गए थे अपनी पाकी के लिए, उनको जनाबत लाहक हो गई थी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिंपल तयम्मुम का बताया कि अगर तुम्हें जनाबत भी लाहक हो गई थी तो तुम सिंपल जो है वो इस तरीके से तयम्मुम कर लेते तो तुम्हें वो काफी हो जाता। सॉरी मैडम, वो ये दीवार वाला है सेटअप है जे, अगर दीवार के साथ भी अक्सर मिट्टी लगी होती है ना, बिल्कुल। तो आप दीवार के दीवार से भी हाथ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। के में है जो है ना उसका तो।
वो है अगर उस पे कि दीवार कभी पे भी किसी अगर के आपकी बेडरूम मट्टी में। लगी हुई है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हाँ हैं तयम्मुम के लिए, यही कहना चाह रही है ना? जी 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 जी। बिल्कुल। जैसे किसी भी जगह हो ना तो मतलब पता है पता है ये जगह पाक है, दीवार पाक है, बिल्कुल। तो कर सकते हैं, बिल्कुल, हाथ मार के किसी भी तयम्मुम उस जगह पे। पे अगर आपको मट्टी मिल जाए ना, ठीक है, तो आप उसे तयम्मुम कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी किसी जगह पे कोई इतनी ज्यादा डस्ट आ गई है जिसको आप, और वो ज़ाहिर है पाक जगह है, तो आप उसको भी तयम्मुम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरा एक और क्वेश्चन ये था। भी आप सही कह रही हैं जो बुशरा ने आई थिंक शुरू में वाली बात बोली थी कि ये भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको डाउट्स है तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी भी एक बर्तन में आप कुछ मिट्टी रख लें, ठीक है, और फिर उस मिट्टी को आप तयम्मुम के लिए इस्तेमाल कर लें, वो तरीका भी सही है। अगर वो नहीं कर सकते तो ये तरीका भी सही है कि किसी मिट्टी के प्याले के ऊपर अगर आ जाती है मट्टी, आप उसको इस्तेमाल कर लें, या दीवार से मिट्टी इस्तेमाल कर लें। ये सब तरीके हमें मिलते हैं। जी, कोई और कुछ कहना चाह रहा था? मैं तो हम आगे चलते हैं। नहीं, मैं एक क्वेश्चन तयम्मुम से रिलेटेड नहीं है। हम्म। अगर फजर के टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं है कि तुम जनाबत के नहाओ और नमाज पढ़ो, तो सिर्फ वजू से नमाज पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, अगर आपको जनाबत लाहक हो गई है तो फिर तो आपके लिए जरूरी है कि आप पाक हो। जनाबत से तो आपको पाकी हासिल करना जरूरी है, सिर्फ वजू से नहीं आप कर सकते। टाइम निकल जाएगा तब भी, टाइम निकल देख जाने का डर है तब भी। जी, इसमें जो हमें नॉर्मली जो फतवा मिलता है वो तो जाहिर है कि अगर आपको जनाबत लाहक हो गई है ना, तो फिर ये है कि आपके लिए जरूरी है कि आप जनाबत से पाकी हासिल करें, ठीक है। सिर्फ वजू से आपकी पाकी नहीं होगी, जनाबत से आपको फिर गुस्ल वाजिब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ ऐसी कंडीशंस अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें ये कि जैसे कि किसी को इमाम है, उसको जनाजा निकलने का खतरा है, ठीक है, कि जनाजा निकल जाएगा अगर वो वुजू करने जाएगा या इस तरह से, तो उसको भी उलमा ने इजाज़त दी है कि ऐसी कंडीशन में आप जो है वो तयम्मुम करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इसके बारे में मेरा बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है। जैसे आपने जो सवाल पूछे, मैं इंशाल्लाह आपको इसका सवाल, इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब मैं पूछ के आपको बताऊंगी कि आपका ये सवाल है कि अगर इंसान को जनाबत लाहक है और फजर का टाइम है और वो बिल्कुल निकलने का टाइम है, तो क्या सिर्फ वो वजू के साथ, इतना तो मुझे पता है कि सिर्फ वजू से वो नमाज नहीं पढ़ सकता, ठीक है। उसको पाकी हासिल करने के लिए उसको गुस्ल करना जरूरी, जब आपके पास गुस्ल वाजिब हो गया तो आपको आपको गुस्ल करना पानी, जरूरी है। तो लेकिन ये पानी है तो सवाल बेसिकली यहाँ पे ये बन रहा है कि क्या ऐसी हालत में वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकता है, कि अगर उसको ये डर है कि उसका नमाज का टाइम निकल जाएगा। तो ये मैं आपको पूछ के बताऊंगी इंशाल्लाह ताला किसी से एग्जैक्टली वैसे। इसमें हमें सेफ साइडेडली कोशिश ये करनी चाहिए कि जब जनाबत लाहक हो तो कोशिश करें कि उस टाइम पे गुस्ल कर लें, ताकि ये वाला अल्लाह ना करे कभी मतलब यारी कंडीशन ना आए हमारे ऊपर ना। तो कोशिश यही करनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको ये भी पता है इंशाल्लाह भी हम नमाज का जब पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर तो आपके पास इतना भी टाइम है ना कि आप एक रकात भी अदा हो जाएगी, यानी उसमें आप गुस्ल करके और एक रकात भी अदा कर लेते हैं, तो आपको इंशाल्लाह वो नमाज टाइम पे कंसीडर की जाएगी, ठीक है। यानी इतना टाइम है कि आपने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद सिर्फ एक रकात भी अगर आपको मिल गई तो भी आपकी वो नमाज टाइम पे ही कंसीडर की जाएगी, ठीक है। लेकिन सिर्फ वुजू करके नमाज पढ़ने के बारे में तो नहीं आप पढ़ सकते, क्योंकि आपको गुस्ल वाजिब है। तयम्मुम के बारे में हम पूछ सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या तयम्मुम की इजाजत है या नहीं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको पूछ के बताऊंगी। तयम्मुम तो अगर पानी है तो तयम्मुम ये नहीं होता। नहीं, पानी की अगर मौजूदगी में तो बीमार नहीं है, जी, पानी की मौजूदगी में तो आप तयम्मुम कर ही नहीं कर ही सकते, नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन जो आप कंडीशन बीमार बता तो रही हैं कि नमाज का टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, लाइक जी, समझ रही हैं आपके 2 मिनट रह गए, अब इसमें या तो गुस्ल करेंगे या आप या जल्दी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें। सिर्फ वुजू करके तो नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो तो आप जनाबत लहा कोई भी आपको, ठीक है। देखिए, वुजू जो है वो गुस्ल का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन जो तयम्मुम है वो कंडीशंस के साथ गुस्ल और वुजू दोनों का रिप्लेसमेंट है, विद कंडीशंस, ठीक है। कि अगर आपके पास पानी नहीं है या पानी के इस्तेमाल से बीमारी बढ़ जाती है तो तयम्मुम दोनों चीज़ों का रिप्लेसमेंट है। लेकिन यहाँ पे आपने कंडीशन बिल्कुल एक नई कंडीशन आ गई है कि भाई पानी भी मौजूद है लेकिन सिर्फ टाइम की कमी है। मेरे अपने जो मेरा अपना इल्म है तो मेरे इल्म के लिहाज से तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ज़रूर पूछ के बताऊंगी बाकायदा एक क्योंकि औरतों के लिए सर पे से पानी बहाना जरूरी है,
اور ویسے سر پہ سے نہ ہوگی تو کافی ٹائم نکل جاتا ہے نا، جی 10 منٹ، دیکھیں، ہاں 10 منٹ۔ جنابت کے لیے یہ ہے، ٹھیک ہے، جنابت کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی عورتیں جن کے بال بہت لمبے ہیں، ٹھیک ہے، اور بال یا تو بندھے ہوئے ہیں اس طریقے سے کہ ان کو کھولنا مشکل ہے، تو جنابت کے لیے، ٹھیک ہے، حیض کے لیے ہم بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ، جنابت کے لیے بات کر رہے ہیں کہ وہ صرف 3 لپ پانی اپنے سر پہ ڈال سکتی ہیں اس طریقے سے کہ ان کی جو سر کی اسکن ہے اس تک پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے بال لمبے ہیں اور آپ پورے لب نہیں تو مطلب 3 جگ؟ 3، آپ جیسے دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے پانی ان کو اپنے سر پہ ڈال لیں کہ وہ آپ کی جو سر کی اسکن ہے نا، اسکن تک پانی پہنچ جائے۔ اگر آپ کے پورے بال نہیں بھی گیلے ہوتے تو بھی جنابت کے غسل میں اس چیز کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں بھی، ابھی بھی آپ دیکھیں جو افریقنز ہوتے ہیں وہ بہت ساری وہ مینڈیاں سی باندھی ہوتے ہیں بالوں میں، ان کی بہت ساری انہوں نے بریڈنگ کی ہوتی ہے، چھوٹی 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 چوٹیاں بنائی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے ہر وقت اس کو کھولنا ممکن نہیں ہوتا، اور جنابت تو ظاہر ہے آپ کو دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ کبھی بھی لاحق ہو سکتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ صرف 3 ہینڈ فل پانی لے کے ان کو اپنے سر پہ ڈال دیں، آپ کی سر کی اسکن کو، اگر وہ سر کی اسکن آپ کی اچھے سے گیلا ہو جائے، پورے بالوں کا گیلا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن حیض کے غسل میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پورے بالوں کو کھول کے اور پورا کا پورا دھوتے ہیں۔ جی بشرا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم، میں یہ سسٹر کے کوشچن سے ریلیٹڈ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ چونکہ روٹین لائف، اس طرح پہلے بھی میں نے روٹین لائف کے ہی بزرگ اور اپنی ہی بڑھاپے کے لیے آپ سے گائیڈ لائن لی تھی نا، جی جی۔ تو یہ سسٹر اس سسٹم میں یہ آج کل ہو جاتا ہے کہ جب سردیوں میں گرم پانی اویلیبل نہیں ہوتا تو پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، ہوں۔ تو بہت ساری بہنوں کے لیے غسل کا پھر طریقہ یہی تھا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہتھیلیاں بھر بھر کے ہوں۔ اپنا وہ لوگ سارے سر پہ پہلے بہا لیں پانی، جی اس کے بعد ہاتھوں کو گیلا کر کے، جیسے ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے سارے جسم کو گیلا کریں وہ، ٹھیک ہے، جیسے مگے بھر بھر کے، میم اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے جیسے مری یا ایسے علاقوں میں جی کہ جی وہ جی۔ نہیں مگا ایک سر پہ ڈالا جا سکتا، بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ سے پہلے سارے جسم کے اعضاء کو اچھی طرح ہاتھ ایسے مار کے نا گیلا کر کر کے جی جی اپنے جی۔ جسم کو گیلا کریں، اور انگلیوں کی پوروں کے ساتھ اپنے بالوں کی سب جڑوں تک پانی کو پہنچائیں، اس کے بعد باقاعدہ استنجا کریں، اور وہ سارا کچھ کر کے تو استنجا کرنے کے بعد پھر وہ اپنا وضو کر لیں سارا، جیسے طریقہ ہے وضو تو اتنے ٹھنڈے پانی سے کیا جا سکتا ہے نا، صرف سر پہ مگا ڈالنے کا مسئلہ ہوتا ہے، بالکل۔ انہوں نے پھر یہ، ہاں جی، یہی ترتیب بتائی تھی کہ سر پہ آپ نے 3 دفعہ یا پھر پہلے آپ استنجا کر لیں، پھر 3 دفعہ سر کے اوپر جی۔ دونوں ہاتھ بھر بھر کے 3 دفعہ پانی ڈال کے اپنے ہوں، انہی گیلے ہاتھوں کے ساتھ یا بار بار بے شک گیلے کر لیں، آپ کا جسم سارا گیلا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد پھر وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں، پورا مگا بھر کے، اگر نہیں ہے اتنا برفیلا پانی ہے نہیں آپ اوپر ڈال سکتے، جی مری وغیرہ میں زیادہ ایسے مسئلہ جی ہوتا ہے، جی، تو یہ بہترین طریقہ ہے اس میں نا۔ بالکل، اس میں یہی کہ سب سے پہلے آپ استنجا کریں گے، ٹھیک ہے، اپنے باڈی سے جو بھی گندگی ہے اس کو ہٹائیں گے، اور اس کے بعد یہی کہ سر پہ آپ پانی ڈالیں گے، اور پھر لائک پانی نہیں بھی ڈال رہے تو جیسے کہ سسٹر نے بتایا بھی کہ آپ دونوں ہاتھوں میں اچھی طریقے سے پانی بھر کے اپنے سر کی جو جلد ہے اسکن ہے اس کو آپ نے گیلا کرنا ہے، ٹھیک ہے، پورے بالوں کو آپ نے دھونا ضروری نہیں ہوتا جنابت غسل میں، ٹھیک ہے، اور جیسے اس طرح کی کنڈیشن ہو جاتی ہے جیسے کہ یہ بتا رہی ہیں، انہوں نے کسی عالم سے فتویٰ بھی لیا ہوا ہے اس بارے میں کہ اس کے بعد پھر آپ اپنے پورے باڈی پہ پانی کو لگا لیں، کیونکہ دیکھیں پانی تو ویسے بھی ہم لوگ بہت زیادہ ایکسس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں اگر آپ پرانے بزنس کے دور میں چلے جائیں تو اتنا پانی وہ لوگ یوز نہیں کرتے تھے، بہت مختصر پانی سے وہ وضو اور بہت مختصر پانی سے وہ غسل کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو بہت ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ پانی اپنے اوپر بہائیں گے تو ہی پاکی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا پانی، ہلکا ہلکا پانی لگا کے بھی آپ اپنے پورے جسم کو گیلا کر لیں تو اس سے بھی آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ پاکی حاصل ہو جائے گی۔ جی میم، اور یہ زیادہ نا، یہ میرے جو نوٹس میں آیا ہے، یہ جب جیسے نیولی میرڈ کپلز ہوتے ہیں نا، بچیوں کی گائیڈ لائن کے لیے یہ ہم نے گائیڈ کیا تھا کہ جیسے ہوں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، دسمبر جنوری کی شادیاں ہوتی ہیں، ہے نا، انہیں بالکل۔ ڈیلی صبح، ہاں اب وہ اتنی امیر بھی نہیں ہر کوئی ہوتا کہ ان کے گھر میں الیکٹرک وہ لگے ہوں گیزر وغیرہ نا، اور پھر بچیاں جھجکتی بھی ہیں، شرم آتی ہے کسی کو کہ کہنے میں کہ ہمیں گرم پانی اویلیبل کر دیں، جی تو نماز فجر جو بچیاں اپنی ہاں، ماشاءاللہ ضرور سے۔ نماز کی پابندی کرتی تھیں، ان کو پھر یہ کہا تھا کہ روزانہ اس طرح بیٹا نہانے کی بجائے آپ نے صبح کی نماز کے لیے ایسے فٹافٹ اپنے آپ کو پاک کر کے تو نماز ادا کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل بالکل۔
बिल्कुल ज़ाहिर है इसमें ये कि आप नमाज नहीं छोड़ें, ठीक है। और इसमें ये है कि आप मुख्तसर से वक्त में और मुख्तसर से पानी के साथ जितना आप कर सकते हैं उसको आप कर लें, ठीक है। लेकिन इसको वही बात है, कंडीशंस के साथ, सही है। इसको अपनी रूटीन में हमने इस चीज़ को नहीं लेके आना। रूटीन में कोशिश यही करनी है कि अच्छे तरीके से करें सब कुछ। लेकिन मुख्तसर, अगर आपके पास, जैसे कि जैसे अब आपने टाइम के हवाले से पूछा, अगर आपके पास टाइम भी कम है तो अब इन्होंने जैसे कि फतवा लिया हुआ है किसी आलिम से कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो अगर आपके पास भी टाइम कम है तो आप मुख्तसर से वक्त में फिर ये भी चीज़ कर सकते हैं। और मैं भी इंशाल्लाह ताला आपको इसके पूछ के भी बताऊंगी। तो बिल्कुल, क्योंकि देखिए उसमें भी आपको जान जाने का खतरा है ना, कि आपने बहुत ठंडा पानी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी जान जाने का खतरा हो जाता है। तो उसमें भी फिर उसमें भी तयम्मुम की भी इजाज़त दी है उलमा ने। तो वैसे कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है और आपके पास कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि आप उसे गर्म कर सकें, ठीक है। वैसे तो अगर आप गर्म कर सकते हैं, आपके घर पे चूल्हा है, कुछ है, आप कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे फंस गए हैं कि वहां पे कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना, और बहुत ठंडा पानी के उससे अगर आप अपने जिस्म पे इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जान जाने का खतरा है, तो उसमें भी फिर तयम्मुम की इजाज़त दी गई है। और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि बहुत मुख्तसर पानी के साथ अपने बॉडी को आप वॉश कर लें। ये, लेकिन ये वही बात है कि सब चीज़ें बहुत कंडीशनल हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इंसान को हालात का कुछ नहीं पता, किस वक्त क्या हालात हो जाए। हो सकता है एक वक्त के लिए, या हो सकता है एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए ये हालात आ जाए, अल्लाह ना करे। तो ये चीज़ें हमें पता जरूर होनी चाहिए कि क्या हमारी मैक्सिमम लिमिट है और क्या हमारी मिनिमम लिमिट है। और यही चीज़ पे हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि कभी उनको भी अल्लाह ना करे का कोई ऐसा वक्त आता है तो वो इसको किस तरीके से वहां पे वाला काम करेंगे, ठीक है। यानी उनको आप जी अच्छे तरीके से भी करने का तरीका बताएं कि ये तो सही तरीका है और ये मजबूरी का तरीका है। जी, यही जो नए नए जुड़े हैं, जो यंग कपल्स हैं, ये नमाज कज़ा कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल। ये फजर के टाइम पे उठ के नहाते नहीं। जी। तो इसके लिए मैं पूछ रही थी कि क्या कुछ है इसमें कि नमाज पढ़ना है उनको, लेकिन ये नमाज कज़ा कर लेते हैं क्योंकि सुबह उठ के नहाना नहीं है उतने टाइम पे, फजर के टाइम पे। बिल्कुल, लेकिन ये तो सारा तरीका सही, मतलब उनको पढ़नी है नमाज तो ठीक, अगर उनके पास पानी भी है और उनके पास पानी गर्म भी मौजूद है, गीजर भी मौजूद है घर में, आराम से कोई नहाने में मुशक्कत नहीं है, और वो सिर्फ यहाँ पे अपनी सुस्ती की वजह से छोड़ रहे हैं, ठीक है, नमाज। इसमें भी ये कि कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को भी हम इस बात की ट्रेनिंग दें कि जैसे जनाबत लाहक हो ना, उस टाइम फौरन गुस्ल कर लें। वैसे तो देखिए इजाजत है, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें मिलता था कि आप जनाबत के बाद से वजू करके भी और पूरी रात भी गुजार लिया करते थे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी आया है कि आप नमाज के लिए भी आ गए थे और आपको याद आया कि मैं मुझे जनाबत लाहक हुई हुई थी, ठीक है ना। तो मतलब ये आपको इजाजत है कि आप उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन नमाज से पहले पहले आपको जरूर नहाना होता है। तो इसमें बेहतरीन तरीका जो होता है, जो आपकी सुस्ती हटाता है, बेसिकली होता है कि जब आप नहाए हुए नहीं होते तो सुबह के टाइम पे जब आपकी नमाज का टाइम, भले आपकी आंख भी खुल जाए, तो आपको यही सुस्ती सबसे ज्यादा आ रही होती है कि इस वक्त नहाएगा कौन, अब नहाना बड़ा मुश्किल है। तो इस चक्कर में फिर क्या होता है कि इंसान, और शैतान ज़ाहिर है आपको बहका रहा होता है, तो फिर शैतान जो है वो वापस से सुला देता है। तो इसमें पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस वक्त भी हो जनाबत, कोशिश करें कि उसी टाइम अपने आप को पाक साफ कर लें, ताकि सुबह के टाइम वाली सुस्ती फिर आए ना। बस ये हम यही कि बच्चों को समझा सकते हैं, उनके लिए दुआएं कर सकते हैं और उनको नमाज की अहमियत बता सकते हैं कि कोई भी नमाज छोड़ना जो है वो कितनी बड़ी, मतलब एक तरह से आपका कोई जैसे फौत हो जाने वाली बात है ना, कि हम तो नमाजों को बड़े आराम से जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे ही समझें जैसे कि कोई आपको बहुत अजीज आपसे फौत हो जाए तो आपकी क्या कंडीशन होती है। तो यही बात ऐसी है कि जब अल्लाह ना करे कभी किसी इंसान की नमाज बिला किसी वजह के, ठीक है, रीजंस के साथ, तो अल्लाह ताला ने बहुत इजाजत दी है कि कोई आपके ऊपर बीमारी लाहक हो गया, बेहोश हो गए, किसी पे कोई जुनून लाहक हो गया, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में तो उसको पता ही नहीं है, या कोई सोया रह गया। अल्लाह तो इतना ज्यादा रहीम है अल्लाह ताला कि उन्होंने तो इस बात की भी वो कि अगर कोई सोया रह गया, ठीक है, यानी उसने अपने हत्तुल इम्कान कोशिश, लेकिन अब ये आदतन सोए रहने की बात नहीं है इसमें, कि भाई वो कहे कि मुझसे तो फजर में उठा ही नहीं जाता, तो चलो अल्लाह ने तो इजाजत दिया, सोए हुए बंदे से कलम उठा लिया गया, तो मैं हर रोजाना फजर की नमाज छोड़ दूं, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें यह है कि आपने पूरी तैयारी की, रात को आप जल्दी सोए, आपने नियत की, आपने कोशिश की, आपने अलार्म लगाया, आपने दो और लोगों को बोला कि मुझे उठाना है, उसके बावजूद भी, मतलब बहुत ज्यादा आपकी सब कुछ, आपकी इंटेंशंस, आपकी असबाब इख्तियार करने के बाद अगर आपने उठ सके, तो फिर अल्लाह ताला इतने रहीम है कि सोए हुए बंदे से कलम उठा लिया गया। लेकिन ये कि आपका इरादा ही नहीं है, रात को आपने कोई तैयारी नहीं की, रात को आप सोई 2:30-3 बजे रहे हैं, सुबह 4:30 बजे फजर के लिए आप कैसे उठेंगे फिर।
ठीक है ना। तो वो इसमें यही कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब भी जनाब लाहक हो उसी टाइम सोएं, वो उसी टाइम पाकी हासिल कर लें। रूटीन में कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी सोएं। हमारे यहाँ रूटीन अब हो गई है उल्टी। लोगों को रातों को जागना और सुबह को सोना पसंद है, और ये बिल्कुल वही शैतान वाले काम है। और आप देखें इसी वजह से हमारी जिंदगियों से हमारे जो है हर चीज़ से हमारी बरकत उठा ली गई है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है इंसान के सुबह के टाइम में बरकत रखी है, और सुबह का टाइम जो बरकत का टाइम होता है वो सारा दिन इंसान सोने में गुजार लेता है। और आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि जब सुबह के टाइम उठ के अगर आप अपने काम शुरू करें तो ऐसा लगता है इतना बड़ा दिन है, और इतने सारे काम आपके सुबह ही सुबह में हो गए। तो बस ये कि यही हमें इंशाल्लाह कोशिश ये करनी चाहिए अपने बच्चों के लिए भी, और दुआ भी करनी चाहिए इसके लिए कि अल्लाह ताला हम सबको राह हिदायत भी रखे इंशाल्लाह, आमीन। आमीन। अच्छा, इसके बाद ये कि तयम्मुम करना कैसे चाहिए, उसकी सिफ्त कैसी है, उसका क्या तरीका होना चाहिए होता है। तो इसमें यही है, इसमें भी आपको इख्तिलाफात मिलते हैं। एक कॉल है कि 2 दफ़ा ज़मीन पे हाथ मारना चाहिए, जो कि जैसे अभी हमने ऊपर हदीस एक डिस्कस की थी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा ज़मीन पे हाथ मारा था, और एक दफ़ा ज़मीन पे हाथ मार के सिर्फ अपने फेस पे फेरा था, और दूसरी दफ़ा ज़मीन पर हाथ मार के अपने हाथों की कोहनियों तक फेरा था। ठीक है, तो वो लोग जो है वो ये दलील देते हैं। लेकिन जो इमाम अहमद कहते हैं वो ये कहते हैं कि इसमें जो है ये एक मौकूफ हदीस है। ठीक है, मौकूफ हदीस आपको पता है कि वो हदीस होती है जो कि किसी सहाबी पे जाके रुक जाती है। ठीक है, मरफू हदीस वो होती है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू होती है, यानी आपने फरमाया होता है। और मौकूफ हदीस वो होती है जो किसी सहाबी का अपना कौल होता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि और कुछ लोग इसके बारे में ये भी कहते हैं कि ये ज़ईफ हदीस है। ठीक है, इसके बारे में मैंने सर्च भी किया था, जो अबू दाऊद की 330 हदीस है, इसके बारे में जो शेख अलबानी और शेख जुबैर अली जई का जो फतवा है वो ये है कि ये हदीस ही ज़ईफ है। ठीक है, इसकी जो है वो कोई हकीकत नहीं है। तो इससे फिर हमें ये पता चला कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें जो सही तयम्मुम का तरीका पता चलता है वो यही है कि आपने एक दफ़ा ज़मीन पर हाथ मारा, और उस हाथ में से पहले आपने मट्टी फूंक मार के उड़ाई, और उस हाथ दोनों हाथों को आपने जो है वो चेहरे पे मला, यानी और उसके बाद फिर आपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की पुश्त पर, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से पर, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर आपने मला, और उसके बाद फिर राइट हैंड से आपने अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर वाले हिस्से पे मला, सिर्फ कलाइयों तक। ठीक है, तो ये आपका तयम्मुम का सही तरीका में यहाँ पे पता चलता है। इसमें लेकिन आपकी नियत होनी चाहिए। ठीक है, वही जैसे क्या वुजू में आपकी नियत होनी चाहिए कि सबसे पहले आपने तहारत की नियत की, बिस्मिल्लाह पढ़ी, और फिर इस तरीके से जो है आपने तयम्मुम कर लिया। अब ये कि नवाक़िस से तयम्मुम क्या क्या है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका तयम्मुम टूट जाता है। तो क्योंकि तयम्मुम हमें पता है कि वुजू और गुस्ल का नेमुल बदल है, उसका रिप्लेसमेंट है, इसलिए जिन चीज़ों से इंसान का वुजू और गुस्ल ख़त्म हो जाता है उन्हीं चीज़ों से उसका तयम्मुम भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी जिन चीज़ों से आपको पता है आपको वुजू टूट जाता है वो चीज़ें आपको पता ही है अल्हम्दुलिल्लाह, या जिन चीज़ों की वजह से आपके ऊपर दोबारा से गुस्ल वाजिब हो जाता है, तो वही चीज़ें तयम्मुम के लिए भी नवाकिस हैं, यानी उन्हीं चीज़ों से आपका तयम्मुम भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा तयम्मुम के लिए एक और एडिशनल चीज़ है पानी का मिलना। ठीक है, अगर आपको पानी भी मिल जाए तो उससे भी आपका तयम्मुम ख़त्म हो जाता है। अब ये है कि पानी मिलने की भी कुछ सूरतें हैं। एक सूरत ऐसी है कि नमाज से कबल पानी मिल गया, एक है कि नमाज के दौरान पानी मिला, और एक है कि नमाज पढ़ने के बाद इंसान को पानी मिला। सबसे पहली कंडीशन हम देख लेते हैं जिसमें कि इंसान को अगर नमाज से पहले पानी मिल गया, यानी इंसान के पास पानी नहीं था, कहीं पे भी उसने पूरी कोशिश कर ली उसको पानी नहीं मिला। अब क्या हुआ कि उसने तहारत की नियत की, बिस्मिल्लाह पढ़ी और तयम्मुम कर लिया, लेकिन अभी उसने नमाज शुरू नहीं की थी। ठीक है, नमाज शुरू नहीं की थी, नमाज से पहले पहले ही उसको पानी मिल गया, सिर्फ उसने तयम्मुम कर लिया था। तयम्मुम करने के बाद कहीं से उसको पता चला कि पानी मिल चुका है, और पानी उसके बाद आ गया, तो चूंकि अब पानी आ गया तो तयम्मुम उसका ख़त्म हो गया। इसमें तमाम उल्मा जो है वो मुत्तफिक हैं। ऐसी कंडीशन में उसका जो तयम्मुम है वो ख़त्म हो गया, अब उसको चूंकि पानी आ चुका है तो वो उस पानी से दोबारा से वजू करेगा और उसके बाद अपनी नमाज अदा करेगा। ये है वो कंडीशन जिसमें सिर्फ उसने तयम्मुम किया था लेकिन अभी नमाज नहीं पढ़ी थी।
दूसरी कंडीशन वो है जिसमें कि उसको नमाज के दौरान पानी मिला। ठीक है, यानी तयम्मुम किया उसने, तयम्मुम के बाद उसने नमाज शुरू कर दी। अब नमाज तकबीर तहरीमा से लेके सलाम तक पूरी की पूरी नमाज है। इस पूरे टाइम में उसको कभी भी नमाज पानी अगर उसको मिल जाए तो उसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल है कि अब वो क्या करेगा। जो राजे कौल है उसके मुताबिक कि अब उसकी नमाज जो है वो बातिल हो जाएगी। ठीक है, यानी उसका तयम्मुम जो है वो बातिल हो जाएगा, तो उसकी नमाज ही बातिल हो जाएगी, जाहिर है उसको, क्योंकि बीच में पानी मिल गया। लेट सपोज उसने तयम्मुम किया, तयम्मुम करके उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, नमाज में वो अभी दूसरी रकात में था, तो कहीं से उसको पता चला नमाज में इधर उधर से किसी की उसकी आवाज़ आई कानों में, या उसको पता चल गया उसके घर से कोई टैप बह रहा है, या उसको किसी का उसने सुन लिया जिसने कहा कि अब पानी मिल चुका है, तो अब उसको चाहिए कि अपनी नमाज को बीच में से ही छोड़ दे और जाए, जाके दोबारा से वजू करे और दोबारा से नमाज अदा करे। और यही राजे कौल है। तीसरी कंडीशन ये है कि नमाज के बाद उसको पानी मिला। ठीक है, यानी ये कि वो उसने तहारत की नियत की, तयम्मुम कर लिया, और तयम्मुम करने के बाद उसने अपनी नमाज भी पूरी अदा कर ली। अब पूरी नमाज अदा करने के बाद अगर तो नमाज का वक्त गुजर चुका है, ठीक है, यानी जब उसने नमाज अदा की और उस वक्त उसको पानी मिल रहा है जबकि नमाज का वक्त गुजर चुका था, तो इस पे तो तमाम उलमा का इत्तफाक है कि फिर अब वो दोबारा वजू करके नमाज नहीं पढ़ेगा। ठीक है, लेट सपोज जोहर का टाइम था, जोहर में उसने तयम्मुम करके नमाज अदा कर ली, जोहर का टाइम 4 बजे ख़त्म हो रहा था, 4:05 पे 10 मिनट पे उसको तो पानी मिल गया, तो अब वो पानी मिलने के बाद दोबारा वजू करके नमाज नहीं पढ़ेगा। इस पे तमाम उलमा मुत्तफिक हैं। लेकिन अगर उसने नमाज अदा कर ली थी तयम्मुम के साथ और अभी नमाज का वक्त मजीद बाकी था और उसको पानी मिल गया, तो अब वो क्या करेगा। राजे कौल के मुताबिक इस पर कोई इयादा नहीं है, क्योंकि वो अपनी पूरी नमाज अदा कर चुका था। ठीक है, इसमें दोनों में डिफरेंस है। पहले वाली जो कंडीशन थी उसमें वो अपनी नमाज के बीच में था, वो नमाज के बीच में था, उसको पानी मिल गया था, तो पानी मिलने की वजह से उसका तयम्मुम बातिल हो गया। तयम्मुम बातिल हो गया तो मीन्स कि उसकी जो वुजू वाली कंडीशन थी, तयम्मुम वाली कंडीशन थी, वो उसकी खत्म हो गई है। अब उसने आधी नमाज तो तयम्मुम के साथ पढ़ ली थी, आधी नमाज में उसका तयम्मुम बातिल हो चुका था, तो इसलिए उसको अपनी नमाज तोड़ के और दोबारा वजू करके नमाज अदा करनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर तो उसको नमाज के बाद पानी मिला है तो उस पे इरादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर नमाज उसने पढ़ ली, नमाज का वक्त भी गुजर चुका, उसके बाद उसको पानी मिला, तो उसकी तयम्मुम वाली नमाज बिल्कुल ठीक है, उसको कोई इरादा की ज़रूरत नहीं है। अगर नमाज का वक्त बाकी था और उसको पानी मिल गया, अब भी उसको इआदा की ज़रूरत नहीं है, उसकी नमाज कबूल हो गई, क्योंकि उसे पूरी की पूरी नमाज जो है वो एक पाकी की हालत में पड़ी थी। लेकिन हनाबला के नज़दीक ये है कि मुस्तहब है कि वो दोबारा नमाज पढ़ लें। ठीक है, यानी इआदे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पसंदीदा चीज़ क्या है कि अगर वो पढ़ ले, अगर उसके पास टाइम है, कंडीशंस हैं, वो पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बारे में उन्होंने एक हदीस भी कोट की है जिसमें दो आदमियों ने जो है वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली थी और फिर उनको नमाज के वक्त के अंदर ही पानी मिल गया था, तो उसमें से एक शख्स ने दोबारा से वजू करके दोबारा से उसने नमाज लौटाई, जबकि दूसरे शख्स ने जो है नहीं लौटाई। और जब उन दोनों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके इस बात का जिक्र किया, तो आपने उनको फरमाया कि तुम दोनों ने दुरुस्त किया। यानी एक को आपने कहा जिसने नमाज नहीं लौटाई थी कि तुमने सुन्नत के मुताबिक अमल किया है, और दूसरा बंदा जिसने वजू करके और दोबारा से नमाज लौटा दी थी, आपने उसको क्या फरमाया कि तुम्हारे लिए डबल रिवॉर्ड है, तुम्हारे लिए दोहरा अजर है। ठीक है, यानी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ लें तो आपके लिए अजर बढ़ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो फ़िक़्ह तहारा था आज हमारा वो मुकम्मल हो गया है। तहारत के हवाले से जो भी फ़िक़्ह था, मुख्तलिफ़ उल्मा के जो मुख्तलिफ़ अक़वाल थे मुख्तलिफ़ मसाइल के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको आज हमने डिटेल से पढ़ के मुकम्मल कर लिया। इसमें भी आप लोगों के कोई भी सवाल हों तो आप लोग पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और जैसा कि आपको पता है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों का पेपर भी होगा, तो उसमें इसी में से मुख्तलिफ सवालात पूछे जाएंगे। पेपर से पहले इंशाल्लाह ताला आप लोगों का कुछ लाइव टेस्ट भी होगा जिसमें लाइव पूछा जाएगा यहाँ पे क्लास में कि क्या पढ़ा है आपने किस बारे में। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास से हम फिर सलाह के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें से जितने टॉपिक्स हम कवर अप कर सके तो हम ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी ये कि अब तक जो हमने पढ़ा है इसके हवाले से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे इस वक्त भी क्लास में भी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम मौजूद है।
जी, किसी का भी कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेंगे जो कुछ भी हमने पढ़ा है। मैम नेक्स्ट वीक से सलाह स्टार्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। अच्छा, नमाज और सलाह। हम्म। अच्छा। और मैम ये जो बुक हमें बताई थी सिलेबस वाली, फिका तो तहारा है ना? जी जी। हाँ जी। इसमें हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने पानी के बारे में पढ़ा था। एग्जैक्टली, सबसे बिल्कुल। पहले हमने इल्म फिका के बारे में पढ़ा था। ये बिल्कुल। थोड़ा सा ओवर देखें तो ये इसी तरह ही था कि हमने सबसे पहले फिका के बारे में पढ़ा। जी। उसके बाद आपने सब इमाम का इंट्रोडक्शन करवाया। ऐसे ही है, बिल्कुल उसके जी। बाद पानी के बारे में पढ़ा, कौन सा बिल्कुल। पानी है और कौन सा तहर। उसके बाद निजासत के बारे में पढ़ा, फिर वजू और गुसल, फिर जी, हैज के बारे में, फिर नफास और अब तयम्मुम। बस यही टॉपिक हैं सारे। बिल्कुल यही टॉपिक्स हैं जो आप सारे पढ़ चुके हैं, इस्तेहाज़ा वगैरह। बिल्कुल यही सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो यही अब हमने बस ये कि देखिए, हमने ये सारे इमामों के बारे में पढ़ा और हमने सारे इमामों के अकवाल भी देखे थे कि उनके क्या अकवाल थे, कि अगर तुम्हें कोई भी हदीस हमारी बात के मुकाबले में मिलती है तो मेरी बात को छोड़ दो और उस हदीस को ले लो। ऑलमोस्ट तमाम इमामों ने इसी तरह की बात फरमाई थी। आगे पीछे वर्ड्स अगर आप कर लें तो हर एक के जो मीनिंग्स लबे लुबाब जिसे कहते हैं वो जो निकलता है वो यही निकलता है। तो इसमें भी हमारा फिर ईमान और हमारा दिल इस चीज़ पे खुला होना चाहिए कि अगर हमें कोई भी बात ऐसी मिलती है जो हमें हदीस और किसी इमाम की आपस में टकरा रही है, तो हमें, अगर हम हदीस वो सही हदीस है तो हमें उस हदीस को ले लेना चाहिए। ठीक है, और यही तमाम इमामों आज जो मसला हुआ है ना, वो हुआ यही है कि हमने हदीस को छोड़ के और अपने अपने इमाम को, अपने अपने स्कॉलर्स को पकड़ लिया। हर बंदे का अपना एक आलिम है और वो अपने ही आलिम को समझते हैं कि वो ठीक है, बाकी सब गलत हैं। तो ये चीज़ कभी भी नहीं सोचनी चाहिए कि मैं ठीक हूँ और बाकी सब गलत हैं। हम सब नाकिसुल इल्म हैं, हम सब के इल्म में कमी हो सकती है। तो ये कि हमेशा अपने आप को इतना ब्रॉड माइंडेड रखें, इतना अपना खुला दिल रखें कि दूसरे की बात भी हम सुने। हो सकता है उसकी बात में भी कहीं 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 किसी हद तक सच्चाई मौजूद हो। ठीक है ना, तो हमारा यही तरीका होना चाहिए और यही तरीका जो है वो इल्म सीखने का भी है, कि जब आप इल्म सीखने के लिए जाएं, कभी भी ये मत सोच के जाएं कि मुझे बहुत आ गया है, मैंने बहुत सीख लिया, अब मुझे मजीद सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इंसान जितना भी सीख ले ना, जितना भी सीख ले, तो उसके उसके बारे में क्या फरमाया था उन्होंने, हजरत खज़ा ने ये फरमाया था ना कि मेरा और आपका इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे दरिया, पूरे दरिया में से जो एक कतरा अगर आप उठा लें तो ये तो इल्म का दरवाज़ा कभी बंद होना ही नहीं है इंशाल्लाह ताला। जितना आप सीखते रहेंगे मजीद, आप जो है, और आप यकीन करें, जब आप जैसे आप देखें, कुरान एक ऐसी किताब है जिसको आप जितने दफ़ा पढ़ें हर दफ़ा आपको एक नए तरीके से उसमें से नया लेसन मिल रहा होता है। ठीक है ना, तो ये जो दीन का इल्म है ना, ये भी ऐसे ही है। आप इस पर गौर व फिक्र करें, मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ उस पर गौर करें। कितने ही मसाइल अब नए नए आ रहे होते हैं। कोविड का मसला आया, उसमें देखें उल्मा ने फिर नए 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 उसमें इजमा करके बताया कि अब किस तरीके से नमाज अदा की जाए, कैसे किया जाए। तो ये इल्म तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, और इसको बस हमें यही हमने पढ़ा था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सच हमने पढ़ा, तमाम इमामों के बारे में पढ़ा, फिक के अदवार पढ़े कि किस में क्या था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो भी चीज़ थी वो अल्लाह ताला की तरफ से वही के ज़रिए से उनको बता दी जाती थी। उसके बाद हमने इजमा के बारे में पढ़ा, इजमा क्या होता है, इज्तिहाद क्या होता है, कयास क्या होता है। इजमा जैसे कि आपको पता है कि कोई भी नया मसले आने पर जो बहुत से स्कॉलर्स किसी एक बात में मुत्तफिक हो जाए तो वो इजमा कहलाता है। इज्तिहाद एक बंदे का अकेले का होता है। ठीक है, कोई एक मसला आया और एक आलिम थे, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कोशिश करके उस मसले का हल अपने इज्तिहाद से, यानी अपनी राय से उन्होंने उसका हल कायम कर दिया। आपको पता है कि अगर तो उन्होंने सही उसका हल है तो उनके लिए दोहरा अजर है, एक उनकी मेहनत का और एक उनके लिए सही हल बताने का। और अगर वो सही हल नहीं भी बता सके, यानी उन्होंने अपने तौर पे पूरी मेहनत की, कोशिश की और उन्होंने उसका कोई ना कोई मसले का हल बताया, लेकिन बाद में पता चला कि वो मसले का हल कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है हदीस के साथ, तो भी ऐसे इमाम के लिए अखेरा यानी सिंगल अजर है, क्योंकि उसने कोशिश की थी। फिर उसके बाद हमने कयास के बारे में पढ़ा था। कयास क्या होता है कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर कयास करना। ठीक है, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी औरत ने आके पूछा था कि मेरा बाप जो है वो मर गया, ये बूढ़ा हो गया बहुत ज़्यादा, या मर गया है, तो मैं उसकी तरफ से क्या हज बदल करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम्हारे बाप के ऊपर कर्जा होता तो तुम उसका कर्जा अदा करती। तो उसने कहा जी बिल्कुल करती। तो आपने कहा फिर ये भी अल्लाह का कर्जा है, यानी इसको आपने कयास कर लिया उसके ऊपर।
ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے مختلف ٹرمز پڑھی تھی الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر ہم نے ڈیٹیل سے سب چیزیں پڑھی تھی. پھر بھی اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے پرسنل بھی پوچھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ آج کی کلاس کا وقت آپ کا مکمل ہو گیا. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ہم مزید آگے کا اسٹارٹ کریں گے فقہ الصلاح. ٹھیک ہے، باقی جہاں تک ہم نے پڑھ لیا اس کو کوشش کریں کہ اچھے سے نیکسٹ کلاس سے پہلے پہلے گریپ کر کے آئیں ان شاء اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. وعلیکم السلام.